A1, A2 up to A to N, comma B are in AP. A, G1, G2, so on up to Gn, B are in GP. H is the harmonic mean of A and B. H is the harmonic mean of A and B. Then the series A1 plus A2N upon G1, G2N. A2 plus A2N minus 1 upon G2, G2N minus 1. A3, A2N minus 2 upon G3, G2N minus 2. An plus An plus 1 upon Gn, Gn plus 1. Okay. As they are in AP, then A plus B same as A1 plus A2N. Am I right? A1 you can write A plus D. A2N you can write B minus D. So if you added these two, then A1 plus A2N is equal to A plus B. Okay. So A1 plus A plus B same as they are in AP, first term plus last term same as second plus second last, same as third plus second third last, like that. So A plus B same as A1 plus A2N same as A2 plus A2N minus 1. ये दोनों का सम 2n plus 1 होना चाहिए. ठीक है. Same as A3 plus A2N minus 2. Sum is the 2n plus 1. Sum is the 2n plus 1. And same as An plus An plus 1. इसका मतलब जितने सारे न्यूमरेटर्स दिया गया सबका वैल्यू सेम है. And each value remain A plus B. Again, as this sequence are in GP, then first into last term same as second and second last. A into B same as G1 into G2N same as G2 into G2N minus 1 and so on up to Gn into Gn plus 1. इसका मतलब सबका डिनोमिनेटर का वैल्यू रिमेन सेम एंड दैट इज AB. Okay. So how many terms are here? Number of terms. It starts with 1, end with n. Number of terms. There are n terms. So each and every term का value remains same. So total became n times. Numerator हो गया आपका A plus B. Denominator is AB. And question given, H is the harmonic mean of A and B. What is the harmonic mean of A and B? AB का हार्मोनिक मीन क्या होता है? AB upon A plus B. That implies AB, A plus B upon AB, you can write 2 upon H. तो पर ये रिजल्ट आप यूज कर सकते हो, which is n times 2 by H.
2n by h. सर Yes. आज आप नया चैप्टर चालू करने वाले हो ना? हाँ, आपका कुछ डाउट है तो पूछ लो, फिर देन आई विल स्टार्ट न्यू चैप्टर. सर कल परसों हमारा कुछ डाउट सेशन है, तो बहुत सारे डाउट्स है, तो अभी पूछे कि कभी? कल डाउट सेशन है. हाँ, ट्यूसडे हाँ या सर. वेडनेसडे को है. सर प्लस एक्सरसाइज 2C बाकी भी है, लाइक एग्जाम्स का ये भी प्रोग्राम नहीं था. तो अब क्या करेंगे, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. हाँ सर, डाउट सेशन में जो डाउट्स बाकी है वो नेक्स्ट क्लास पूछ लेंगे क्या, अगर कुछ नहीं हुआ तो? ठीक है. ओके सर. So your new chapter is the straight lines. सर Yes. सर हमें एक्सरसाइज 3 अभी करने की रिवीजन के टाइम करना है? कौन सा नहीं, जिसका हो रहा है करो ना. जो ऑब्जेक्टिव वाले हाँ, ऑब्जेक्टिव वाले ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट में इतना डिफरेंस नहीं है. मतलब ये आप एक्सरसाइज 3 मतलब जो जेई में जेई का क्वेश्चन बोल रहे हो ना. नहीं नहीं, विंडो टू जे मैंने एक्सरसाइज 3 करके सब्जेक्टिव का सेट दिया है. अच्छा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करो, ऐसा कुछ ये नहीं. हम क्लास में भी तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं ना. हाँ सर. इतना ये नहीं, बट ज्यादा नहीं. पुराना क्वेश्चन मेनली होता है. हाँ सर, वो जेई के क्वेश्चन अलग से विंडो टू जेई में विंडो टू जेई अलग से दिया, वो तो कर लिया. हम्म. करना है तो करो, नहीं करोगे तो चलेगा, ऐसा कुछ ये नहीं. ओके सर. Okay. Basically, I'll start today coordinate system. Do you know coordinate system? हाँ सर. स्कूल में हुआ होगा ना. हाँ सर, 9th में हुआ था, 10th में भी हुआ था. In this system, we'll now learn about 2D, two-dimension geometry. This is your coordinate axis. It is x-axis, x dash, y dash, that already you know. First quadrant, second quadrant, third and fourth quadrant. Plus plus, minus plus, minus minus, plus minus. Right? So if you consider anywhere one point, उसको हम क्या लिखते हैं? Suppose you consider here one point, which coordinate is the x, y. इसका मतलब क्या है? X units from origin and Y units. So, If you draw perpendicular from given point to coordinate axis, x axis as well as y axis, ठीक है. Let us take m. तो ये origin OM का डिस्टेंस कितना होगा? X होगा. Actually it is mod x. Okay. But first quadrant में mod x equal to x होगा. अब PM का डिस्टेंस कितना होगा? और वाई. Mod Mod Y. y. For this case it is y because of first quadrant, क्योंकि here x and y both positive. Second quadrant होता है
तो यू कांट टेल इट इज मॉड x, डिस्टेंस इज द सॉरी x बोल नहीं पाओगे क्योंकि x दे आर नेगेटिव, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। ओके, बट दिस केस मॉड x इक्वल टू x एंड मॉड y इक्वल टू y। If you join OP, what is the OP distance? x square plus y square. plus y square. Under Square root. root of x. So here point x comma y, इसमें x को क्या बोला जाता है? What is Sisa. abscissa? Y is called Ordinate. Coordinate. ordinate. Okay, total became coordinate. Huh? X and y is the coordinate. X is called abscissa. Y is the ordinate. And this is your called Cartesian form. XY form is called Cartesian form. Apart from Cartesian, one more form is the Polar form. yes. Another form is the polar form. What is that? Sir, in that वो ये रहता argument. Argument और फिर magnitude. Let OP makes an angle theta with respect to positive direction of x-axis. Okay. Sir, so OP is the magnitude. OP consider R. R is the under root of x square plus y square. Then what is the cos theta? X mod x upon x, under root x square plus y square. Mod x, for this case x is upon R, and sin theta is the Pi by r. y by R. तो x क्या हो जाएगा? R cos theta, y is the R sin theta. so x comma y Cartesian form x you can write r cos theta comma r sin theta. Okay, in short it is called r comma theta. This form is called polar form. तो एक phi भी रहता है ना? Hmm? Phi भी होता है ना? Z axis. Z axis एक r theta और phi रहता है ना? तीन एंगल. दो वो तो एंगल. 3D में होगा. Okay, 2D में r comma theta. What is the r? R is the distance from Origin. that is under root x square plus y square, which is distance from origin to given point. What is the theta? Angle made with x axis. Positive x-axis. Okay, Okay, sir. angle by the line or line segment joining origin to given point with respect to positive direction of x-axis. Correct? और एक आपको मिला डिस्टेंस फ्रॉम x square plus y square root over square root of x square plus y square is the distance from origin to given point. Okay, that already mentioned here. Right.
डन। सर एक मिनट, सर 1 मिनट ऊपर जा सकते हैं? डन। नेक्स्ट डिस्टेंस फॉर्मूला। So distance between 2 points, ये दोनों के पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है। लेट अस टेक P पॉइंट, Q पॉइंट, पॉइंट P is the x1, y1. This is x2, y2. What is the distance between PQ? under root x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Distance between 2 points P x1, y1 and Q x2, y2. Square root of x2 minus x1 or x1 minus x2, nothing difference because of square, plus y1 minus y2 square, है ना? ये कैसे मिला? सर along x2 minus x1 है और along y2 minus y2. परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। राइट, what is the OA distance? x1, x1. OB distance? x2, What about AB distance? x2 minus x1. x2 minus x1. तो PC का भी वही होगा। हाँ सर, What about QB distance? y2, y2 y2. PA distance? y1, तो QC distance? y2 minus y1. y2 minus y1. Now PCQ is a right angle triangle. PCQ is the right angle triangle and PQ is the hypotenuse. तो PC का डिस्टेंस कितना होगा? सॉरी, PQ का डिस्टेंस कितना होगा? qc PQ square plus square pc equal to square. PC square plus QC square. मिला? Which is
x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. This is pc square, sorry, pq square. Then pq became square root of this. इसका पोलर फॉर्मेट में होगा तो क्या होगा? इन पोलर फॉर्म. सर तो इसका रूट और फिर कॉमा थीटा होगा. तो पोलर फॉर्म में पॉइंट पी को क्या लिखेंगे? कंसीडर r1 थीटा 1. इसको लिखेंगे r2 थीटा 2. ठीक है. व्हाट इज योर r1? r1 क्या है? x2 square plus y square. Sorry, x1 square. r1 x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर का रूट ओवर है ना. हाँ सर. हाँ एंड थीटा 1 इज द उनका एंगल है. अच्छा, आप यहाँ पे x1 की जगह क्या लिख सकते हो? यू नो x इज इक्वल टू r cos थीटा. तो क्लियरली आप x1 को क्या लिख सकते हो? r1 cos theta. r1 cos थीटा 1. y1 को लिख सकते हो r1 sin थीटा 1. x2 you can write r2 cos theta 2. y2 you can write r2 sin theta 2. Already you know distance formula is the under root x1 minus x2 or x2 minus x1 whole square plus y1 minus y2 square. b square कर दो. ठीक है. अब डाल दो और जो रिजल्ट हमारे पास है use that result. What is x1 minus x2? r1 cos theta 1 minus r2 cos theta 2 square of this plus y1 r1 sin theta 1 minus r2 sin theta 2 इसका स्क्वायर. दोनों का a स्क्वायर रखो, क्या मिलेगा? r1 square. r1 स्क्वायर. दोनों का b स्क्वायर रखो, r2 square. r2 स्क्वायर. दोनों का 2ab रखो, माइनस 2 r1 r2 cos cos theta theta 1 sin. cos theta 2 plus sin theta 1 sin theta 2. Am I correct? Yes sir. This became r1 square plus r2 square minus 2 r1 r2 cos of theta 1 minus. Cos of theta 1 minus theta. ठीक है. दिस इज योर d स्क्वायर. तो d क्या होगा? r1 square plus r2 square minus 2 r1 r2 cos of theta 1 minus theta 2 का स्क्वायर. समझा? थीटा 1 मतलब आप OP को ज्वाइन करोगे जितना एंगल करेगा दैट इज थीटा 1. OQ को ज्वाइन करोगे जितना एंगल करेगा दैट इज थीटा 2. ये होगा आपका थीटा 1. ठीक है, एक मिनट. AP EQ दिस इज O. इसको आप ज्वाइन किए, ये हुआ आपका थीटा 1. ज्वाइन OQ दिस बिकम थीटा 2. तो ये एंगल होगा आपका थीटा 1 माइनस थीटा 2. तो डू यू नो वेक्टर? Yes. वेक्टर. Yes. हाँ, ये वेक्टर का जो डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स ना उसका मैग्नीट्यूड वाला यूज है वो भी. हाँ सर. अब देखो ऐसे वेक्टर
ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। तो ए वेक्टर कौन सा होता है? ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। ये कितना होता है? वट एवर दिस वेक्टर, ए बी वेक्टर कितना होगा? that AB plus A is equal to B. तो बी माइनस ए होगा ना हाँ सर, ए को उल्टा करेंगे। आपका। सेम ओ ए प्लस ओ बी होता है, ओ ए प्लस ए बी होता है ओ बी, है ना? दोनों का डायरेक्शन मैंने सेम रखा है, इसको अपोजिट रखा, अलग डायरेक्शन। तो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। ओ ए वेक्टर गिवन ए बी वेक्टर आपको चाहिए इक्वल टू बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर क्या होगा? बी माइनस ए, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन हमेशा होता है। इसका जो पोजीशन वेक्टर होता है ना, दिस इज द बी वेक्टर। पोजीशन वेक्टर इसका बी होता है, इसका पोजीशन वेक्टर ए होता है। ठीक है, ये होगा बी माइनस ए। तो आपका बी माइनस ए का ही मैग्नीट्यूड डालोगे, क्या होता है? डू नो हाँ ए सर, प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर हाँ हाँ सर, सर, क्या प्लस क्या बी होता है? प्लस 2AB cos थीटा। ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस प्लस टू टू ए बी ए cos ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड cos थीटा, ये होता है ना? सर व्हाट इज द थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। ए एंड बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है वही आ गया। हियर एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स इज द थीटा 1 माइनस थीटा 2, वही सेम थिंग। हाँ सर, सेम ही। ठीक है, तो ये दिस इज अ फॉर्मूला इन फॉर्म ऑफ पोलर, और ये कार्टेशियन में। तो ये कार्टेशियन का फॉर्मूला, ये पोलर का फॉर्मूला। पोलर ज्यादा यूज नहीं होता है, लोकस के लिए हम यूज करते हैं ज्यादा, तो कार्टेशियन यूज होता है। राइट।
Done. Yes, sir. Next, division rule. What is division rule? Division rule or section formula? वो क्या होता है? सर लाइक एक लाइन में एक पॉइंट है तो वो कितने सेगमेंट्स में उसको डिवाइड कर रहे हैं। रेशियो। हाँ Let this is the point P Q अगर एक पॉइंट बीच में कहीं भी x1 y1 x2 y2. Let us take R is a point whose coordinate is this one given, na? Given. R is a point whose coordinate is x comma y, which divides PQ in ratio m is to n internally. Okay. If point, first one is the internal division. If point R x comma y divides the line segment joining P x1 comma y1 and Q x2 comma y2 in ratio m is to n internally, then क्या होता है? मतलब P given, Q given, M given, N given, how to find out x and y? क्या लिखोगे? X क्या होता x है? is mx2 plus nx1 upon n plus ये कर्नर टू कर्नर होगा. mx2 mx2 plus nx1 nx1 divided by upon m1 m plus n. like y होगा my2 my2 plus ny1 divided by n plus n. ny1 upon m plus. ठीक है? इसका प्रूफ चाहिए क्या? जिसका प्रूफ चाहिए आप बता सकते. कर पाओगे? हाँ सर ट्राई करो.
तो क्लियरली आपका पी एम आर एंड आर एन क्यू सिमिलर ट्रायंगल, Yes, sir. नो? बोथ आर सिमिलर ट्रायंगल। क्योंकि आपका ये दोनों पैरेलल लाइंस टू द एक्स एक्सिस, तो दिस टू आर पैरेलल, तो ये आपका ट्रांसवर्स हो गया, तो ये एंगल इक्वल हुआ, ये 90, तो एंगल एंगल के हिसाब से क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो पी एम आर ट्रायंगल सिमिलर टू आर एन क्यू ट्रायंगल, because of similar triangle then sides ratios are equal, तो pm upon rn RN. is equal to rm upon QN. qn is equal to pr upon RQ. rq। what is the pm distance? pm distance कितना होगा? X minus X1 squared plus Y minus Y1 squared. pm distance Oh, sorry. X minus X1. x minus x1, तो दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है ना, इसका y कोऑर्डिनेट इसका y कोऑर्डिनेट सेम होगा, y कोऑर्डिनेट हाँ, मतलब sir. जितना डिस्टेंस, तो y पार्ट नहीं रहता है, x minus x1 का मॉड एक्चुअली। हाँ सर, Okay. मैं PR कह रहा था। हाँ, देन rn क्या होगा? Y minus rn RN X2 minus X1. x2 minus x. What is rm? Y minus Y1, y minus y1, qn Y2 minus Y. y2 minus y। ठीक है, अब डाल दो pm you can write x minus x1 upon rn x2 minus x is equal to y minus y1 upon y2 minus y is equal to what is pr upon rq? pr upon rq, m is to n, है ना? R divides PQ in ratio m is to n internally, तो PR upon RQ is equal to m by n। M by N. If you check, इसमें x में जो मिला इसमें y में वही मिला, x minus x1 y minus y1 x2 minus x y2 minus y। तो मैं इसके साथ इसको इक्वेट कर रहा हूँ, इसमें जो रिजल्ट x में होगा वही रिजल्ट y में भी होगा। तो if you equate these two, then you have x minus x1 upon x2 minus x is equal to m by n, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, that implies nx minus nx1 is equal to mx2 minus mx। mx को इधर ले रहा हूँ, तो nx plus mx, if you take x common then m plus n into x is equal to mx2 plus nx1। तो x क्या हो जाएगा? mx2 plus nx1 upon plus n। y में भी वही रिजल्ट होगा, जस्ट रिप्लेस x1 x2 as y1 y2। ठीक है, तो दिस इज योर फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन। तो मिड पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट क्या होगा? सर मिड पॉइंट होगा तो M और N इक्वल हो जाएगा। m इक्वल टू n हो जाएगा, 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। इफ r बिकम मिड पॉइंट ऑफ pq, देन pr अपॉन rq बिकम 1, दैट मींस ये 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा, तो m एंड n के जगह 1 each डाल दो, तो क्या मिलेगा? if X2 plus X1 by 2.
R be the midpoint of the line segment joining P and Q, then x क्या होगा, x1 plus x2 by 2 and y होगा y1 plus y2 by। और एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन, ये इंटरनल डिवीजन था, और एक होगा एक्सटर्नल डिवीजन। व्हाट इज एक्सटर्नल डिवीजन? सर लाइक वो पॉइंट बाहर नहीं करते हैं वैसा। ये P, और इनको कोई और ये लाइन Q, बाइसेक्ट कर रहा है। ये R, ठीक है। R पॉइंट एक्सटर्नल साइड में रहेगा, इंटरनल साइड में नहीं रहेगा। इफ R, बस वही स्टेटमेंट वही रहेगा, इफ पॉइंट R डिवाइड्स इधर लाइन सेगमेंट नहीं बोलेंगे, डिवाइड द लाइन बोलेंगे। लाइन होगा तो एक्सटेंड करेगा, ओके। लाइन सेगमेंट करेंगे तो वो एक्सटेंड नहीं होता है। द पॉइंट R डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग P and Q in ratio m:n externally, ओके। इसका मतलब आपका PR अपॉन RQ, उधर भी वही मिला था, PR अपॉन RQ, यहाँ पे m/n आ रहा है। ये साइड में R होगा तो क्लियरली m मस्ट बी मोर देन n, ओके। ये साइड में होगा तो n बड़ा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, ठीक है। देन ये आपका वही x1, y1, ये q इज द x2, y2, ये आपका x, y। देन x क्या होगा, सेम फॉर्मूला, प्लस के जगह माइनस हो जाएगा, mx2 माइनस nx1 अपॉन n माइनस n, एंड y होगा my2 माइनस ny1 अपॉन। अदरवाइज आप इंटरनल भी डिवीजन डाल सकते हो। सपोज मैंने दिया ये m रेशियो, ये n रेशियो, ठीक है ना। आपको एक्सटर्नल डिवीजन याद नहीं रहा तो क्या करोगे, इसका PQ मतलब is to PQ हो URM जाएगा minus। m माइनस n रेशियो, है ना। इसका मतलब क्या होगा, ये P, ये Q, ये R, PQ हो जाएगा m माइनस n रेशियो, ये हो जाएगा n रेशियो। उसके हिसाब से वो इंटरनली डिवाइड करेगा, इंटरनल डिवीजन डाल दो आपको मिल जाएगा। क्योंकि आपको क्या चाहिए, 4 थिंग्स चाहिए, एक 2 पॉइंट चाहिए, डिवीजन चाहिए, रेशियो, डिवीजन का रेशियो चाहिए। अब तो मिल गया, आपके पास P है, Q है, ये दोनों रेशियो भी है, तो R को x, y लेके निकाल सकते हो। एवरी एक्सटर्नल के लिए भी आप इंटरनल डिवीजन लगा सकते हो, समझे कि नहीं। मैंने बताऊंगा कि ये P, ये Q, ये R, R डिवाइड्स PQ इन रेशियो 10:3 रेशियो एक्सटर्नली। इसका मतलब क्या होगा, Q डिवाइड्स PR इन रेशियो 7:3 इंटरनली, हाँ वही होगा, ठीक है। यस सर। जरूर नहीं कि हमें एक्सटर्नल डिवीजन भी यूज करना पड़ेगा, ऐसा जरूर नहीं है। आप इंटरनल को भी मैनिपुलेट करके एक्सटर्नल डिवीजन निकाल सकते हो, वाइस वर्सा।
अच्छा, वन मोर थिंग, जो आपको mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n दिया गया, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n सेम आज kx1 प्लस x2 अपॉन k प्लस। इसमें क्या होता है, दो दो आपको सपोज m एंड n पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है कि p पॉइंट गिवन, q पॉइंट गिवन, r पॉइंट गिवन, फाइंड द रेशियो। ओके, इन व्हिच रेशियो q divides the line segment joining p and r। p गिवन, q गिवन, r गिवन, रेशियो आपको पूछ रहा है, तो क्या करोगे, instead of m is to n you can write also k is to 1। suppose 2 is to 7 you can write 2 by 7 by 1, यस यस सर। तो वही होगा, आपको k का वैल्यू मिलेगा, मतलब m by n भी मिल जाएगा। तो इसमें मैं क्या कर देता हूँ, मतलब डिवाइड कर दो, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय m, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय m, तो क्या मिलेगा, x2 प्लस n बाय m x1 अपॉन 1 प्लस n बाय m। अब n बाय m को क्या ले जाता हूँ, क्या आ गया, kx1 प्लस x2 अपॉन k प्लस 1, वही तो मिला। ठीक है, आपको रेशियो दिया गया m इज टू n, ले लो, रेशियो पूछ रहा है इंस्टेड ऑफ m एंड n, तो आप एक अननोन के साथ जा सकते हो, यहाँ पे दो दो अननोन के साथ क्यों जाओगे, एक अननोन के साथ आप जा सकते हो। इंस्टेड ऑफ m इज टू n यू कैन सिलेक्ट, you can choose k is to 1 ratio, lambda is to 1 ratio। समझा ये? तो नथिंग डिफरेंस, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। राइट।
सर ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो। डन। सर नहीं सर, थोड़ा एक ऊपर मिनट। जा सकते हैं। इतने का। नेक्स्ट
एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल कुछ वर्टिसेस आर x1 y1 x2 y2 and x3 y3 क्या होता है? Do you know कि नहीं? सर is x1 y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 इसका मॉडुलस। और अब ये x एंड y में हुआ, वो y एंड x में होगा। y1 इंटू x2 माइनस x3 प्लस y2 इंटू y3 माइनस y1 सॉरी x3 माइनस x1 plus y3 into x1 minus x2. Can you prove? फिर से प्रूव करना है। ये कहाँ से आया, कैसे आया? ये भी आप लोग का स्कूल में था ना? नहीं सर, बस सेंटर ऑफ ट्रायंगल था। अच्छा, सर हम इसमें क्या कर सकते हैं कि 3 वर्टिसेस बना सकते हैं, फिर ज्वाइन कर सकते हैं वो लाइन सेगमेंट्स को, और फिर हम्म परपेंडिकुलर बना सकते हैं। तो वो हम्म परपेंडिकुलर का लेंथ लेंगे और फिर वो सेक्शन फॉर्मूला से होना चाहिए। हाँ करो। ऐसे एक ट्रायंगल ले रहा हूँ, कुछ कोऑर्डिनेट्स आर x1 y1 x2 y2 x3 y3। मुझे इसका एरिया चाहिए। तो तीनों वर्टिसेस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो टू द एक्स एक्सिस।
Can I write area of triangle ABC? ये क्या है? BPQA क्या होता है? ट्रेपेजियम। Trapezium. It is area of trapezium BPQA plus area of trapezium AQRC AQRC माइनस minus B BPRC. Am I correct? यस सर। ये ट्रेपेजियम एरिया प्लस ए ट्रेपेजियम एरिया, इससे माइनस कर दिया ए ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ इंटू Half सम into साइज इंटू हाइट। Half into sum of parallel sides. What is the parallel sides? These two are parallel to each other. BP प्लस AQ। हाँ, तो बीपी का डिस्टेंस कितना? Y2 सॉरी हाँ हाँ, Y2 y2. AQ का Y1 y1. CR का Y3 y3. PR PQ का X1 PQ माइनस X2 x1 minus x2. QR का x3 minus X1 x1. PQ distance x3 minus x2. Am I correct? यस सर। तो हमें चाहिए बीपी डिस्टेंस प्लस AQ डिस्टेंस which is y1 plus y2 into हाइट। हाइट क्या है? ये ट्रेपेजियम के लिए दिस इज द हाइट, इट इज x1 minus -6 प्लस हाफ ये ट्रेपेजियम का एरिया, सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना हुआ? y1 plus y3 y1 plus y3 into x3 minus x1 minus 1 by 2 ये ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम, तो इसका सम ऑफ पैरेलल साइड्स y2 plus y3 into x3 minus x2, करेक्ट ना? तो हाफ कॉमन, इसको मल्टीप्लाई करो, you'll get x1 y1 minus x2 y1 plus x1 y2 minus x2 y2 plus x3 y1 x1 y1 minus x3 no plus x3 y3 minus x1 y3 minus x3 y2 plus x2 y2 minus x3 y3 plus x2 y3। देखो सब 1 1 2 2 3 3 वाला कैंसिल हो जाएगा, x1 y1 प्लस x1 y1 माइनस x2 y2 माइनस x2 y2 प्लस x3 y3 प्लस x3 y3 माइनस कैंसिल, बचा क्या? हाफ। अच्छा, बिकॉज ऑफ एरिया तो इसका मॉडुलस होगा, ठीक है? क्योंकि ए रिजल्ट नेगेटिव भी हो सकता है। अब x1 दोनों जहां पे x1 टर्म है ना उसको एक साथ ले लो, तो x1 into y2 minus y3, then consider all x2 term here,
और एक x2, तो y3 माइनस y1 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 टर्म x3 इंटू y1 माइनस, समझा? यस सर। नहीं, इसको आप y1 कॉमन रखोगे, विल गेट सेम थिंग। इसको सिंपलीफाई कर दो, ये y1 वाले को भी सिंपलीफाई कर दो, बोथ रिमेन सेम। x1 y2 चेक करो, x1 y2 हियर, ठीक है ना? देन x1 y3 माइनस x1 y3, यहाँ पे आ रहा है देखो, उल्टा जा रहा है। यहाँ पे ये प्लस था, x1 y2 ये माइनस में आ रहा है, ये जो प्लस आया है इसमें माइनस आ रहा है, बट मॉडुलस की वजह से क्या होगा, सेम हो जाएगा, हाँ एग्जैक्टली इसका नेगेटिव आ जाएगा। x1 y3 माइनस में जा रहा है, यहाँ हियर यू आर गेटिंग x1 y3 प्लस में, ठीक है? x2 y3 प्लस, इस साइड में माइनस मिलेगा आपको, x2 y3 माइनस में मिल रहा है, राइट? देन x2 y1 माइनस में, इस साइड में आपको मिलेगा x2 y1 प्लस में, x2 y1 plus, then x3 y1 plus, here you will get x3 y1 minus में, x3 y1 minus में, then x3 y2 minus, here you will get x3 y2 plus, right? तो एग्जैक्टली इसका नेगेटिव मिला, बिकॉज ऑफ मॉडुलस कोई अफेक्ट नहीं करेगा, तो बोथ आंसर रिमेन सेम। बाकी डू यू नो डिटरमिनेंट, 3/3 डिटरमिनेंट डू यू नो? सर बस वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट में वो बस कर रहा है सर। हाँ, तो जस्ट कैसे एक्सपांड किया जाता है वो मालूम है ना? हाँ सर, एक को हटा के करते हैं ना। और area of triangle also you can write half determinant of x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, वही मिलेगा आपको। If you expand your determinant, determinant को कैसे expand करते हैं? x1 क्रॉस करोगे y2 माइनस y3, है ना? x1 into y2 minus y3, then do you know you can evaluate your determinant any row wise, any column wise? Do you know? Row wise, column wise भी आप evaluate कर सकते हो? नहीं सर। नहीं, ठीक है, तो वो बाद में करेंगे। चलो, मतलब इसको मैं एक्सपांड कर देता हूँ, x1 into y2 minus y3, then minus y1, y1 को क्रॉस करो, minus y1 into x2 minus x3 प्लस 1 into 1 को क्रॉस किया, 1 into x2 y3 minus x3 y2, x2 y3 minus x3 y2, ये एक्चुअल डिटरमिनेंट इसका मॉडुलस रहेगा बिकॉज ऑफ एरिया, विच इज हाफ x1 into y2 minus y3, मैं जस्ट वेरीफाई कर रहा हूँ, माइनस x2 इधर एक टर्म है, इधर एक टर्म, तो x2 कॉमन रखोगे, इफ यू टेक प्लस x2 कॉमन, देन y3, ये प्लस y3 माइनस y1, देन x3 टर्म, ये भी x3 टर्म, प्लस ये प्लस x3 हुआ, प्लस x3 कॉमन रखेंगे, देन y1 माइनस y2, सेम आंसर मिला जो मिला था। तो ये भी फॉर्मेट आप यूज कर सकते हो डिटरमिनेंट, बट इसमें और एक मेथड होता है दैट इज मोर एप्लीकेबल एंड इजी मेथड। क्या करोगे, जो पॉइंट से स्टार्ट करोगे ना, वही पॉइंट पर एंड करोगे, इसको ऐसे सर्कुलरली मूव कराओगे, ए से स्टार्ट किए, ए बी देन सी देन ए, कंप्लीट करना है, ऐसे लिखना है, x1 y1 ए पॉइंट, देन बी पॉइंट, x2 y2,
देन सी पॉइंट x3 y3 देन ए पॉइंट कंप्लीट करेंगे, पूरा फिगर कंप्लीट होगा x1 y1। इनफैक्ट जो पॉइंट से आप स्टार्ट करोगे वही पॉइंट पर एंड होना चाहिए। इसको क्या करेंगे, डिटरमिनेंट में जैसे किए थे ना, ऐसे ऐसे करेंगे बस, विच इज हाफ। क्या मिला, x1 y2 माइनस x2 y1, x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2, x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस x3 y1 माइनस x1 y3, x3 y1 माइनस x1 y3। डिटरमिनेंट में जैसे किए थे ना ऐसे, ए बी माइनस सी डी, इसमें वही होगा। ये भी चेक करोगे इसके साथ इक्वल, ये जो रिजल्ट मिला था ना इसके साथ इक्वल होगा। चाहता वेरीफाई कर दो। फर्स्ट वन इज द x1 y2, x1 y2, x2 y1 माइनस में, x2 y1 माइनस में, देन x2 y3 प्लस में, x2 y3 प्लस, then x3 y2 minus, x3 y2 minus, then x3 y1 plus, x3 y1 plus, then x1 y3 minus, x1 y3 same ना, result remain same। तो in this way you can find out, कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, फर्स्ट वन और सेकंड वन और डिटरमिनेंट और ये, ओके जो आपको इजी लग रहा है कर सकते। समझाइए, हाँ सर। 4 मेथड मैंने बताया, कोई भी मेथड आप यूज कर सकते।
डन। सर एक मिनट। So based on this, giving some question. ये जो पॉइंट दिया गया पोलर पॉइंट बिटवीन जो पोलर पॉइंट्स हैं, find point on the line joining 2, -8 and it's in ratio 3:4 internal.
सर हाँ बोलो। सर थर्ड क्वेश्चन में फाइंड द पॉइंट मीन्स 2 पॉइंट है क्या या एक ही पॉइंट है? 2 पॉइंट ना, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। ओके।
सर डन। हाँ सर, सेकंड वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स आ रहा है। हाँ सर। बाकी सब हो गया। ओके, थर्ड वन हुआ। ये आपका 2, -8, 3, 10 इन रेशियो 3:4 इंटरनली। ये पॉइंट चाहिए, ये P, ये Q, ये R, ये चाहिए। X क्या होगा? mx2 3 × 3 प्लस 8 n × x1 8 अपॉन m + 7, y होगा my2 प्लस ny1 अपॉन m + 7। कितना मिला? 17/7, then x, y 17,7 17/7, -2/7। एक्सटर्नल डिवीजन, सेम क्वेश्चन, एक्सटर्नल डिवीजन दिया गया 7:11। क्या होगा? सर तो m-n लिख के करना है। यस, फोर x होगा mx2 4:7 हो जाएगा। माइनस nx1 22 mx2 माइनस nx1, तो आपका 26 कैसे मिला? सर m-n है लाइक सर 26 क्या है? 4:7 है ना सर। 4:7 है। अच्छा, 4:7 का। नहीं, 7:11 एक्सटर्नल है ना। हाँ हाँ सर। सर, तो 4:7 इंटरनल। सर तो हम अगर वो जो सेकेंड वाला सेगमेंट है उसको हम 7 लेंगे और पूरे इसको 11 लेंगे तो 11 - 7 4 होगा ना, पहला वाला, पहला तो 4:7 हो जाएगा। तो आपको ए साइड में वो 7:11 मतलब आपका पी आर, पी आर होगा 7 और क्यू आर होगा 11। तो इसका मतलब ये साइड में आपका आर पॉइंट इधर नहीं आ पाएगा। ठीक है, सर एक्सटर्नल डिवीजन ना तो तो क्यू आर आपका और ए साइड में पॉइंट आएगा, ए साइड में पॉइंट आएगा, आर पॉइंट इधर होगा, इधर नहीं होगा। सर QR 7 होना चाहिए ना। हम्म, क्यू आर क्यू आर 11 होना चाहिए, पी आर 7 होना चाहिए। तो राइट साइड में नहीं होगा ना। तो आप क्या इंटरनल डिवीजन डाले? हाँ सर, इंटरनल डिवीजन डाला तो हाँ, तो आप उधर गलती किए ना। ये आपका पी पॉइंट, ये आपका क्यू पॉइंट, तो आर पॉइंट उसके राइट साइड में नहीं होगा, लेफ्ट साइड में होगा। सो दैट आपका पी आर क्या मिला? आपका पी आर इज टू आर क्यू दिया गया 7/11 ना। पी आर अपॉन आर क्यू गिवन 7/11, तो डेफिनेट आर क्यू का वैल्यू बड़ा होगा, पी क्यू का पी आर का वैल्यू कम होगा। तो आप ए साइड में रखोगे, विच इज नॉट पॉसिबल। तो 7:4 होगा। 7:4 किसका? कौन 7:4 में डिवाइड करेगा? RP/PQ। हाँ, तो ये आपका 7 पार्ट, ठीक है, ये आपका 11, आप हाँ इसको 4 बना सकते हो। ठीक है ना। तो आप ए इंटरनल डिवीजन डाले ना। तो मैं मिस्टेक आपको बता रहा हूँ, आपका मिस्टेक कहीं ना कहीं हुआ है।
तो आपको P पॉइंट गिवन which one 2 -8, Q पॉइंट गिवन 3 10, आपको R पॉइंट निकालना है। लेट R पॉइंट इज x, y। अब इंटरनल डिवीजन डालो, क्या होगा 7 इंटू ये 7:4 रेशियो में डिवाइड किया, P पॉइंट P डिवाइड्स RQ इन रेशियो 7:, पॉइंट P डिवाइड्स RQ इन रेशियो 7:4 इंटरनली अभी हो गया। ठीक है, तो 7 इंटू 3 प्लस 4 इंटू x अपॉन 7 प्लस 4 11 इज इक्वल टू 2। कोई x कोऑर्डिनेट होगा ना, x कोऑर्डिनेट मतलब किसका, p का होगा, r का नहीं। तो आपका x क्या मिलेगा, 4x क्या मिला 22 माइनस 21 1, तो x क्या होगा 1/। सिमिलरली 7 इंटू 10 प्लस 4 इंटू y अपॉन 11 इज द -8, इसका y कोऑर्डिनेट। तो 4y क्या होगा -88 माइनस 70 माइनस कितना 158, तो y होगा -79 अपॉन, ये होगा। आप वही चीज को एक्सटर्नल डिवीजन में डालो। ठीक है, आपका P पॉइंट गिवन, Q पॉइंट गिवन, R पॉइंट कहीं पे आएगा आपको कुछ ये नहीं है, P पॉइंट दिया गया आपका 2, -8, Q पॉइंट गिवन 3, 10, और मैंने क्वेश्चन दे दिया कि R डिवाइड्स PQ इन रेशियो कितना 7:11 एक्सटर्नली। PQ लाइन जॉइनिंग PQ, PQ इन रेशियो 7:11 एक्सटर्नली। इसका मतलब R लेट R इज इक्वल टू x, y। तो x क्या होगा mx2, m मतलब आपका ये 7, ये n, ये x1 y1, ये x2 y2, mx2 मतलब 7 इंटू 3 माइनस nx1 11 इंटू 2 अपॉन m माइनस n 7 माइनस 11 y my2 7 इंटू 10 माइनस ny1 11 इंटू -8 अपॉन m माइनस 11 कितना मिला -1 अपॉन -4 दैट इज 1/4। ये आपका +70 +88 158 अपॉन 4 दैट इज सॉरी अपॉन -4 -79 अपॉन 2, वही मिला था। चेक करो, वही x समझाइए। यस सर। तो आपको देखना पड़ेगा, आप इधर क्या किए, आप उल्टा कर दिए ना, 4 और हाँ 7 सर। कर दिए, हाँ तो फिर गलत हो जाएगा। आपको देखना पड़ेगा कौन सा साइड में वो एक्सटर्नल कर रहा है, लेफ्ट साइड में कि राइट साइड में। मैंने बताया था सर और वो कैसे ढूंढ सकते हो? न्यूमरेटर, जब न्यूमरेटर मोर देन डिनोमिनेटर होगा ना, बताया था ना, न्यूमरेटर व्हेनेवर न्यूमरेटर मोर देन डिनोमिनेटर रेशियो में, तो आपका राइट साइड में आएगा पॉइंट। न्यूमरेटर वैल्यू छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो लेफ्ट साइड में आएगा।
इसमें क्या है, मतलब आपका देखो, इधर में पॉइंट आर रख के बता पाऊंगा क्या ये आपका कितना 7, ये 11 हो सकता है क्या? ये डिस्टेंस आपका 7 यूनिट्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 7, ये सेम मल्टीप्लीकेशन ऑफ 11, ऐसा होगा क्या कभी? नहीं नहीं होगा ना। तो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसका न्यूमरेटर छोटा है। तो ये साइड में होगा तो आप P का छोटा रहेगा, Q से बड़ा रहेगा। क्लियरली मतलब विजिबल है ये, ऐसा नहीं कि ये दिखाई नहीं दे रहा है, इट इज क्लियरली विजिबल। समझा? यस तो ये गलत था। In which ratio the 2,8 divides the line segment joining these 2 point? मिला? सर हाँ सर मैं मिला। ये करेक्ट रहेगा आपका -4,3 कितना 1:3 करेक्ट है ये। सर इसको के लेके करना था ना। हाँ के करो, m/n रखो चलेगा, m/n रखोगे भी चलेगा, आपको m/n निकालना है, k/1 कर दोगे भी चलेगा। ये मिला? हाँ हाँ सर। इसमें एक मैं शॉर्टकट बताता हूँ 5th वन का। फाइंड द रेशियो इन व्हिच, एक नोट कर लो, x एक्सिस तो x का 0 रहेगा ना। नहीं y का मजीरा ना, x axis always divides the line segment or line joining x1 y1 and x2 y2 in ratio -y1:y2। यही रेशियो में हमेशा डिवाइड करेगा। एंड y एक्सिस क्या करेगा? -x1 -x2। Yes. तो आपका उधर पॉइंट क्या था? 3, -4 -5, 6, ठीक है ना? तो इसका निकाल दो, -y1:y2 कितना आया? -y1 4/6 मिला? और ये क्वेश्चन यस एक्स एक्सिस पूछा होता तो इन व्हिच रेशियो एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग दिस 2 पॉइंट, तो -x1/x2, तो 3:5 रेशियो में डिवाइड करें। बाकी ये क्यों नहीं हुआ? सेकंड वन लेंथी हुआ। सर वो cos 75 आ गया अंदर। अच्छा ओके। c, π/4 7, 2π/3 डिस्टेंस क्या होगा? r1² प्लस r2² माइनस 2 r1 2r1 r2 cos cos θ1 थीटा माइनस θ2, इसका स्क्वायर रूट। तो 3² 9, 7² 49 -2 × 3 × 7 cos 75 डिग्री है ना? हाँ सर। cos 75 क्या याद नहीं? √3 -1/2 √2 किया तो भी बहुत लेंथ दिया है। हाँ बस उधर रख दो। हाँ सर वही किया था मैंने। हाँ 42 × √3
-1 अपॉन, मैंने तो ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया था, तो एक 2 कैंसिल कर सकते हो, 2√2 भी मतलब 2 कैंसिल करके आप लिख सकते हो, बस ऐसे ही रहना था, पूरा सिंप्लीफाई करने का कोई जरूरत नहीं। ओके सर। ठीक है सर हाँ, जरा कभी ऑफलाइन आते हो नेहरू सेंटर में? गया था ना इस संडे, कभी? लास्ट संडे गया था मैंने कल। अच्छा, तो मैं नेक्स्ट नोटिस संडे, आया ही नहीं। नेक्स्ट संडे भी है, बट मेरा क्लास रहता है एक्चुअली। ओके। सर वो y एक्सिस ऑलवेज डिवाइड्स लाइन जॉइनिंग को वापस समझो। हम्म सर वो नोट का सेकंड पॉइंट वापस समझो। आपको यहाँ पे एक पॉइंट x1 कमा y1, ये पॉइंट x2 कमा y2, तो कौन सा रेशियो में आपको डिवाइड करेगा, ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस x1 है। x1, ये डिस्टेंस x2, हाँ सर। ठीक है ना। बट एक डिस्टेंस लेफ्ट x के लेफ्ट साइड में रहेगा, एक डिस्टेंस राइट साइड में है, इसका मतलब x1 x2 में कोई एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव तो होगा। हाँ सर। मैंने डिस्टेंस तो नहीं लिया ना, मतलब ये मैग्नीट्यूड डालेंगे, बट देखा जाएगा तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, x1 -x1 होगा, इसका डिस्टेंस x2 होगा, एक्चुअल डिस्टेंस देखेंगे तो, क्योंकि ये तो नेगेटिव x में ये नेगेटिव देगा ना। अच्छा, हाँ अब ये जो ट्रायंगल, लेट अस टेक ए बी सी एंड डी ई, these two triangles are similar triangle, a triangle, a triangle, a yes, b c triangle similar to क्या है, डी बी ई ट्रायंगल, है ना। तो जब ट्रायंगल, तो रेशियो क्या होगा, एस सी अपॉन डी ई, yes, सेम आज ए बी इज टू बी डी, मुझे ए ही निकालना था, इन which रेशियो पॉइंट बी डिवाइड्स और y एक्सिस डिवाइड्स एस ए डी, यही निकालना था ना, दिस इज योर क्वेश्चन, तो आंसर क्या होगा, -x1 अपॉन x2। x2 ओके सर। सिमिलरली एक्स एक्सिस करेंगे तो वही होता है, -y1 आ जाए, ये मैंने दोनों लिखा क्या है ऐसे, यहाँ पे चेंज होगा ना, x के लिए y रहेगा, y के लिए x रहेगा, ओके सर। -x1 x2। चलो नेक्स्ट टाइम कुछ क्वेश्चन करके असाइनमेंट दूंगा। ठीक है सर। थैंक यू एंड बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय।